کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے, کائنات کو بنانے والے, کائنات کو پیدا کرنے والے سے پوچھا جائے. ایک ایک چیز کو اس نے واضح کر دیا ہے, ایک ایک چیز. اب اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے. جو حق پہ چل رہا ہے اور حق پر چلنے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کو جھگڑوں کا ذمہ دار نہیں کہا جائے گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں ہوں یا نظریاتی لڑائیاں ہوں یا مناظرے ہوں یا گھریلو جھگڑے ہوں, اس میں کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار, کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ناپنے کا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ معیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس. جب معیار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر جھگڑا کبھی حل ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہی ہوگا کہ تو میں لڑائی. مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے کی ایک چیز زید کو بیچی. زید نے 1,00,000 روپے آپ کو واپس, یعنی آپ کو دینے ہیں اسے اس کی قیمت میں. وہ 2 دن لیٹ ہو گیا, نہیں پہنچ سکا یا کوئی مجبوری تھی. اب وہ 2 دن کے بعد 1,00,000 روپے لے کر آیا. آپ نے کہا کہ چونکہ 2 دن تم نے لیٹ کر دیا ہے تو اب میں 1,00,000 کے 1,10,000 لوں گا. 10,000 جو تاخیر کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوئی ہے, اس ٹینشن کے تم بولے ذمہ دار ہو. اب اگر عقل سے فیصلہ کرے نا, عقل سے, قیامت آ جائے گی آپ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے. کچھ بھی کر لو. بکر جس نے زید کو پیسے دیے تھے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا جو 2 دن تک نقصان ہوا, اس پیسے کو میں بزنس میں لگا کے 10,000 روپے آرام سے کما سکتا تھا, میں یوں کر سکتا تھا, میں یوں کر سکتا تھا. یہ بھی مضبوط دلیل ہے. اور جو ٹینشن دی اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے نا. تو اس کے کم سے کم کتنے بنتے ہیں؟ 10,000. اور چلو 10 نہیں تو چلو 5, کچھ تو اس ٹینشن کی تلافی ہوگی. زید یہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے لیے 1,00,000 ہیں تو میں کس خوشی میں 1,10,000 دوں بھائی. سمجھ رہے ہیں ہمارا ایگریمنٹ کس کا ہوا تھا؟ 1,00,000 کا ہوا. تو 1,10 کہاں سے آ گئی؟ آپ کس رقم سے کیا کر سکتے تھے, کیا نہیں کر سکتے تھے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک. بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے, بولی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. عقل کے لحاظ سے تو دونوں صحیح ہیں. قیامت آ جائے گی, آپ سے یہ فیصلہ بولو نہیں ہو. اب یہ لڑ رہے ہیں, پھڈا کر رہے ہیں. اس لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے. اور یہ لڑائی قیامت تک چلے گی جب تک ایک پہ ظلم نہ ہو جائے, دبا نہ دے اسے. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ اس پہ ختم ہوگی کہ جو پاورفل ہے وہ غالب آئے گا. بکر جس نے قرضہ دیا تھا اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ زبردستی نکال لے گا, پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. زید کے اگر پاورفل ہے وہ کہے گا جو کرنا ہے کر لے, میں وہ 1,00,000 بھی نہیں دوں گا. اگر پاورفل ہے تو لڑائی کیا ہو جائے گی؟ ختم. یہاں لڑائی ختم کیسے ہو رہی ہے؟ طاقت کے بل بوتے پر. لیکن اگر آپ کوئی معیار متعین کرتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ کروائیں گے ملکی قانون سے, چلے ملک کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کرے تو اس کو اتنی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ فرض کر لیں ملک میں قانون بنا ہوا ہے. تو ملکی قانون کا حوالہ دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی, بلکہ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک کا یہ قانون غلط بنا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ قانون یہ ہم جیسے انسانوں نے بنایا ہے جو ظلم پر مبنی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ملک میں رہتے ہو تو اس ملک کے قانون کو فالو بہرحال آپ نے کرنا ہے. سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے قانون آپ کے ذمہ لازم ہے. اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ غلط قانون لازم نہیں ہے, صحیح قانون. اب کوئی ملک قانون بنا دے, ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا آپ نے, سارے اوٹ پٹانگ قوانین بنا کے اس نے اپنی قوم پہ مسلط کیا. انٹرنیٹ کے استعمال پہ پابندی, پتہ نہیں کیا کیا. انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی سلب کی ہوئی ہے انہوں نے. تو کچھ بھی بنا کے کسی کے اوپر, جیسے ابھی نیا قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ بچوں کو آپ سختی نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچے کو تھپڑ بولو نہیں مار سکتے. کیا اس قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے؟ ہمیں جب ضرورت ہوگی حکومت سے پوچھے بغیر بچے کو تھپڑ ماریں گے اگر ضرورت ہوگی. اور اگر وہ پولیس میں گیا تو بچہ بھی گھر سے باہر بولیں گے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہو جا کے. صحیح ہے نا؟ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے کہ باپ یا گھر کا سربراہ اپنی اولاد پہ سختی بولو نہیں کر سکتے. بیگم کو بھی پرمیشن ہے, تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی تو وہ کہاں جائے گی؟ تھانے. اس کا جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ہاں یہی ہوگا کہ اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں گھر والوں کے, تمیز سے چل رہے ہیں, اس کے باوجود کبھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی اور وہ پہنچ گئی تھانے, تو بندہ کیا کرے گا؟ رکھے گا اس کو, کہے گا بھائی میرا تھانے میں ہی رہو. کہاں رہو؟
बच्चे को भी कहेगा कि आप वहीं रहे, थाने में जिंदगी गुजारे बेटा, वही तुम्हारा बाप बन के तुम्हें पालेगा। तुमने कानून का सहारा लिया है ना, तो कानून तुम्हारा बाप है, ठीक है ना। कानून पुलिस के पास होता है तो उसी से पलवाओ अपने आप को। गोरों ने यही किया है, तभी तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उनको पता है ये कल साला बड़ा होकर हमें थाने में ले जा सकता है। तो उन्होंने कहा ये काम मुश्किल हो जाए, वो भी बुढ़ापे में, शायद कुछ काम का निकल आए, ट्राई कर, एक रिस्क लेते हैं वो। बुढ़ापे में एक आध पैदा करते हैं, रिस्क कि चलो यार, और वो भी अपने लिए नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के लिए, चलो जी बुढ़ापे में इसको भी एक आदत चाहिए। तो क्या इस कानून को मानोगे? ये कानून अगर पास हो भी गया, ये ऐसा ही है जैसे हमें जबरदस्ती शराब पिलाने का कानून, हमें जबरदस्ती माँ बाप को सताने का कानून पास हो जाए, गैर शरई है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ये गधे घोड़ों के लिए बना है कानून, इंसानों के लिए। हमारे सेनेट में बिल पास हुआ है ना, जो जहाँ गधे और घोड़े रहते हो, ये कुछ होटल में 2-4 लोग रहते हो तो कस्टमर एक दूसरे कस्टमर का ख्याल करेगा, आंखें नहीं दिखा सकता। जो फैमिली है इसमें आपस में रिलेशन होता है, कहीं मोहब्बत है, कहीं सख्ती है, कहीं अब्बा जी का मूड ऑफ है आज, और अब्बा का तो मतलब ही होता है कभी कभी मूड उसका ऑफ हो। अच्छा, ये जितने इंसानी हुकूक के कवानीन बनते हैं, इनमें माँ बाप के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही है। अजीब बात है, हैरत की बात है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इंसान जब कानून साजी करता है ना खुदा को छोड़ के, ये होता है, ये उसका हाल है। इंसान जब कानून साजी करता है तो उसका हाल देख रहे हैं क्या है? ये असेंबली में बैठे हुए लोग कानून बना रहे हैं, वो हाल देख रहे हैं क्या बना रहे हैं। एक कानून माँ बाप के लिए बना है कुछ दिन पहले, वो भी सिर्फ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि किसी ने अपने बाप या माँ को घर से निकाला तो उसके खिलाफ सजा है। अच्छा है, अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। लेकिन ओवरऑल अगर आप दुनिया में देखते हैं तो माँ और बाप के लिए कानून साजी नहीं हो रही है, क्योंकि माँ बाप को पालना उनकी नजर में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, औलाद की जिम्मेदारी नहीं है। ये लॉ है दुनिया का, कितना गंदा लॉ, जिसका, और कुरान सबसे ज्यादा किसका हक बयान करता है? आपके पेरेंट्स का। वो बीवी बच्चों को बाद में रखता है। ये दुनिया बड़ी मफाद परस्त है, बहुत मफाद परस्त है। यहां जिसका जो मतलब होता है ना, तो कानून उसका उसी हिसाब से बनता है। हमारे पास झगड़े आते रहते हैं ना, तो जिसको जहां माली फायदा नजर आता है उसका उसूल भी वो खुद ही बना के उस वक्त लॉन्च करता है कि ये उसूल है, इसके हिसाब से फैसला करें। तो हम कहते हैं उसूल आपके नहीं चलेंगे, उसूल अगर आप इस्लाम से फैसला करवा रहे हैं तो इस्लाम ने बताया वो उसूल चलेगा, आपका थोड़ी चलेगा। कुछ वक्त पहले तक मुल्क में कानून था, अब नहीं मुझे पता कि कोई चेंज हुआ है या बाकी है। किराएदार अगर घर खाली नहीं कर रहा, मालिक मकान ने किसी को रेंट पे घर दिया, और ये जो किराएदार है ये धरना मार के उस घर में बोलो बैठ गए, अब किराया भी नहीं दे रहा, तो मालिक मकान इसे घर से नहीं निकाल सकता। समझ रहे हो? मालिक मकान इसे घर से नहीं निकाल सकता। अब मुझे नहीं पता ये चेंज हो चुका है या वैसे ही है। जब हमारे हुक्मरानों पे खुद पे पड़ती है ना, तो कानून फौरन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बॉसों के किराएदारों ने, अयूब खान के सुने दामाद ने कहीं दूसरी शादी की बात कर ली थी, तो फौरन आईन कवानीन में कानून पास हो गया कि बीवी की इजाजत के बगैर आप शादी नहीं कर सकते। ये चल रहा है मार्केट में। मार्केट में पता है क्या चल रहा है? जिसके मफाद पे इज्जत पड़ती है, अब जो असेंबली में पहुंच चुके होते हैं अक्सर तो उनमें बुड्ढे बुड्ढे होते हैं बेचारे, उन्होंने तो करना कराना है नहीं। उनको ये डर होता है कि हमारे दामाद में कर लें, हमारी बहनों पे न सोकने आ जाए, तो इसलिए उन्होंने तो यही करना है भाई, दूसरी अलाउ नहीं है। और वैसे भी बाज लोगों के, सबके नहीं, वैसे ही खांचे इतने खुले हुए होते हैं, तो उनको वो तो बरमला कहते हैं कि बाजार में जब खुला दूध मिल रहा है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है, खुलेआम कहते हैं। तो ऐसे लोग क्यों पास करेंगे भाई? इसलिए अल्लाह ने कानून साजी इंसानों के हाथ में दी नहीं है, अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। मैंने पैदा किया तो मुझसे पूछो ना, क्योंकि अल्लाह किसी के मफाद से, अल्लाह का ना कोई फायदा है ना अल्लाह का कोई नुकसान है, वो बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक कानून बनाएगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। देखो दूसरी शादी की बात हुई, ऐसे चेहरों पे मुस्कुराहटें आ गई, सब बैठे हुए। हालांकि मैंने तो एक तरगीब नहीं दे रहा, मैं तो एक उसूल बयान कर रहा हूँ। ऐसे दांत खिल रहे हैं माशाअल्लाह, यही उल्टा असर होता है ख़वातीन पर, बिल्कुल। तो अल्लाह कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बेहतर बात किसकी हो सकती है? बिल्कुल सही सही बात सिर्फ कौन करता है? बोलो, अल्लाह कर, सिर्फ अल्लाह ही करता है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं करता। अल्लाह के अलावा हर आदमी बात करेगा अपने मतलब की। कानून ऐसा बनाएगा जिसमें पहले इस पे जद ना पड़ रही हो। अगर वो मैं हूंगा तो मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि मेरे खिलाफ ना जा रहा हो। हाँ, अगर मेरे मफाद पे जद पड़ रही है तो कानून चेंज। दहशतगर्दी के खिलाफ बिल पास नहीं होते, आवाम लुट रही है, मोबाइल स्नैचिंग शुरू हो गई, 2-4 हुकूमती लोग अगर उनकी जेबों से वॉलेट निकल जाए और उन पे कोई बंदा मर जाए तो फौरन क्या हो जाता है? आपने देखा होगा अक्सर कराची की सड़कें नहीं बनती, लेकिन अगर आपको कहीं कोई सड़क बनी हुई नजर आ रही है तो समझ लो यहाँ किसी सियासी लीडर का विजिट होने वाला है, हजरत जी के लिए बनाई गई है। ये जब है जब कानून साजी किसके हाथ में हो? बोलो, इंसानों के हाथ में। तो इंसानों के हाथ में जब कानून साजी होती है तो झगड़ा ऐसे खत्म होता है कि जो पावरफुल होता है वो क्या आ जाता है? गालिब। अदालतों में भी यही हो रहा है।
ताकतवर के लिए अलग उसूल हैं, कमजोरों के लिए। देखो सियासी लीडरों की जेलें अलग होती हैं, अजीब बात है या नहीं? इन्होंने जब कानून बनाए तो कैदियों के लिए जेल, ये कानून साजी हुई। इनको ख्याल था कल हमारे ऊपर भी करप्शन का इल्जाम लग सकता है तो हम भी जेल में जा सकते हैं, तो सियासी जेलें बिल्कुल अलग। ये कानून अल्लाह ने पास किया है। बोलो भाई, ये तो इंसानों ने बनाया है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। तो ये हाल होता है। इंसान वहां कानून साजी करेगा जहां अल्लाह ने उसको इजाजत दी हो। इंतजामी मामलात में वहां इंसान को इजाजत है। एक मैनेजमेंट के लिए एक जिम्मेदार होता है ना, अमीर होता है। आप तबलीग में निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो भाई जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीयत ने मुबाह रखी हैं, उसमें खुद कानून नहीं बनाया, वो आपका अपना हेडिक है, तो उसमें लड़ाई से बचने के लिए इस्लाम ने हुक्म दिया किसी एक को अमीर बनाओ। तो कंट्री का जो वजीर आजम है या सदर है, उसकी भी हैसियत ऐसी है कि असल जो कवानीन है बेसिक वो अल्लाह ने बना दिए हैं अपने बंदों के फायदे के लिए। उसने बता दिया है, और उसने बताया देखो ये लोग जो मजहबी लोगों को फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, बुनियाद परस्त कहते हैं, और ये कहते हैं ये लोगों को मजहब का गुलाम बना रहे हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो असल में इंसानों को, मुकम्मल इंसानों का गुलाम बना रहे हैं, अपने जैसे इंसानों का। खुदा के लिए लड़ने वाला शहीद हो जाए तो बुनियाद परस्ती, मुल्क के लिए लड़ने वाला कत्ल हो जाए तो ऐन गैरत और शहादत और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात से नवाजा। हालांकि जो मुल्क के लिए लड़ रहा है उसमें बसा औकात वो कंट्री जुल्म कर रहा होता है, गलत कर रहा होता है, लेकिन उसको 21 तोपों की सलामी के साथ दफन किया जाता है। वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है जो उसने जान दी है, उससे कोई नहीं पूछ सकता। अब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे नाहक हमला करता है, जुल्म समझा जाता है ना इसको, लेकिन आप देखें कि इसके फौजी जब लड़ते हुए कत्ल होते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है कि नहीं दी जाती? 21 या मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तोपें होंगी, मुझे नहीं पता। हालांकि इसने क्या किया है, इस फौजी ने गलत किया, जुर्म किया है कि जब आपको पता है कि आपका कंट्री एक गलत हरकत कर रहा है तो आप किस बेस पर एक कमजोर कौम पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन उस फौजी को मैदान जंग में पीछे हटने की इजाजत नहीं होती, बल्कि उसको ये कहा जाता है कि आपका एग्रीमेंट था कि कंट्री को जहां भी जैसे भी जब भी जरूरत पड़ी आपको ये पूछने की इजाजत नहीं है कि सही है गलत, आपने लड़ना है। ये एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट की वजह से आप पाबंद हैं। ये दलील गलत है, इसलिए कि एग्रीमेंट अगर गलत हो तो अकल ये कहती है कि उस एग्रीमेंट की पाबंदी लाजिम। मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, मुझे 1000 रुपए दो, मैं फला बंदा मार के आता हूं। अब मैं बंदे को तलाश कर रहा हूं, बंदा मुझे कह रहा है भाई मुझे नहीं मार, मैं कहूं भाई एग्रीमेंट है। ये क्या है? मुआहदा है। दुनिया में कोई अकलमंद कहेगा कि इस मुआहदे की बेस पर एक बेगुनाह का कत्ल जायज है? अरे क्या हो गया, बोलो यार, कहां से जायज हो गया? ये एग्रीमेंट ही गलत है, जुल्म पर मबनी है। आपने अपने मुल्क से फौज में भर्ती होते हुए एग्रीमेंट किया कि मैं मुल्क के लिए लड़ूंगा, अच्छा एग्रीमेंट है, सही है, लेकिन अगर इसमें यह बात भी शामिल थी कि मुल्क अगर नाहक जुल्म कर रहा है फिर भी लड़ूंगा, तो क़यामत के दिन आपको शहादत का अजर नहीं मिलेगा। आप गार्ड ऑफ ऑनर और ये सब चीजें तो होंगी, अल्लाह कहेगा मैं नहीं बख्शूंगा। जितना वो जो अमेरिका के रहने वाले मेरी मखलूक थी, जापान वाले भी मेरी ऐसी ही मखलूक थी, तो तुमने मुल्कों की लकीरें खींची आपस में, ये तुम्हारा हेडिक है, मेरा थोड़ी है। जब मैंने आदम और हव्वा को जमीन पे भेजा था उस वक्त दुनिया में कोई कंट्री नहीं था, सब इंसान, तो तुमने फटे कर करके लकीरें खींची हैं, और जिन फटों पे लकीरें खींचते हो, जिन बातों पे, उन बुनियादों पे खुद भी कायम नहीं रहते। इंडिया कितना बड़ा था ना, जिसमें बर्मा का भी हिस्सा था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, हिंदुस्तान पूरा, कितनी बड़ी स्टेट बनता आज वो। हमने उसे 2 टुकड़े किया इस बेस पर कि हम एक ऐसी रियासत चाहते हैं जिसमें सुपीरियर कौन होगा, कुरान और सुन्नत। इस बेस पे हमने एक बहुत बड़े कंट्री को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, दोनों की ताकत को तोड़ा, दोनों के वसाइल को तोड़ा। लेकिन आज उसके बाद जब हम ये बिल पास करते हैं कि बाप अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता, सही हदीस और कुरान की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि नहीं उड़ाई जा रही? आज हम जिना को लीगल करार देते हैं, बदकारी को लीगल करार देते हैं, और बहुत सारे कवानीन जो हमारे यहाँ असेंबली में बैठे हुए लोग पास कर रहे हैं, तो ये उस बुनियाद की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि नहीं उड़ाई जा रही? अब अगर कोई आपके बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाए तो चूंकि आपका अब आप उसको मुल्क की वो सुनाना शुरू कर दोगे। मैं तो कहता हूँ इस कानून को हम मानते ही नहीं है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से परमिशन, ये इस्लाम ने इंतहाई फजूल हुक्म है। तो लतीफा है बहुत बड़ा, ये क्या है? लतीफों की किताब में एक लतीफा आना चाहिए कि दूसरी करने की इजाजत उसको जिसकी पहली बीवी इजाजत है। ये बहुत बड़ा लतीफा है, ये लतीफों की किताब में आना चाहिए। ये असेंबली में अगर कोई ये बिल पास हो रहा है तो इसका मतलब वो सारे अहमक हैं, बेवकूफ हैं। ये ऐसा ही है जैसे टैक्स वो दे जिसको, जो अपनी खुशी से दे रहा हूं, जो खुशी से नहीं दे रहा उसे टैक्स बोलो ना लिए। ये ऐसा ही है जैसे कुर्बानी के लिए उस बकरे को ज़बह किया जाएगा जो खुद लेट जाए आराम से, जो खुद लेट ना रहा हो उसको कुर्बान करने की इजाजत नहीं है। मुर्गी वो खा सकते हो जो खुद छुरी के नीचे आ जाए, समझते हो?